Hi friends, welcome to session 101A of Accounts Hub. This is primarily class 12th accounts. अब आपने class 11th accounts पढ़ लिए, you get into class 12th. अब class 12th के accounts जो हैं, what are we going to study in class 12th? कुछ something different accounts, मतलब बिल्कुल entirely different from what we have done in 11th, या उसी का कुछ continuation है. What are we going to basically study here, and how is it going to be different from class 11th? We'll just give you an overview of what we are going to do in class 12th accounts. Class 12th accounts को primarily we can divide into three sections. तीन sections हैं class 12th के accounts के. First is partnership accounts. Now partnership accounts carry weightage of 36 marks in your final examination. So that means this is going to be one of the most important sections of your study of class 12th. अब partnership accounts क्या है? Is it some different kind of accounting या कुछ different चीज है? Now partnership क्या है? This you must have studied in your business studies. We'll also be discussing it when we come to partnership accounts. But basic चीज ये है कि there are certain situations which are different from what we have seen up till now. जो basic situation है purchase of goods, sale of goods, incurring of expenses, receiving of payments, bank transactions, वो सब same है, वो सब same रहेंगी. There will be some transactions which will be different from what you have already studied in class 11th. मतलब कुछ different type की transactions, new types of transactions होंगी. So what we need to study is the basic accounting of those different kind of transactions or situations. Basic accounting means what? Journal entries. So partnership account में हम कुछ नया नहीं करने वाले हैं. What we are going to only do is जो basic accounting हम करते थे journal entries, वही journal entries हमने करनी है. But basic thing ये है कि वो situations और transactions different हैं. So कुछ नई kind of situations और new kind of transactions को हमें पहले समझना पड़ेगा, analyze करना पड़ेगा, then उसकी journal entries हमारे को पास करनी है. So basic accounting हमने करनी है, nothing कोई इसमें कोई बड़ा कुछ different नहीं करना है हमने. And this carries 36 marks. We'll be discussing at length this. Second जो आपका section है, that section is company accounts. Exactly the same thing applies in company's accounts also. Company के accounts में भी कोई डिफरेंट नहीं होने वाला है. व्हाट इज अ कंपनी आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा. सो कंपनी के अकाउंट्स जब हम करते हैं तो परचेज, सेल, एक्सपेंसेस, वो सब ट्रांजैक्शंस तो वैसे ही रिकॉर्ड होंगी जैसे आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो 11th के अंदर. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू हियर इज, कंपनी के केस में कुछ नई टाइप की ट्रांजैक्शंस होती हैं, कुछ पिक्यूलियर ट्रांजैक्शंस होती हैं. उस पिक्यूलियर ट्रांजैक्शंस की बेसिक अकाउंटिंग कैसे होगी, दैट मीन्स उनकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करी जाएंगी. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस second section, and this section carries 24 marks. So that means out of 100, 60 marks आपके इन दोनों टॉपिक के अंदर, इन दोनों सेक्शंस के अंदर कवर हो जाएंगे जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के हैं. थर्ड सेक्शन जो हमारा है which carries weightage of 20 marks. Now this section is analysis of financial statements. अब एक पहले मुझे एक चीज बताइए कि हमने क्लास 11th में अकाउंट्स पढ़ा. अकाउंट्स पढ़ाई क्यों? अकाउंट्स रखते ही क्यों हैं? अकाउंट्स बनाते ही क्यों हैं? सो ये जो चीज़ है ये हमने इनिशियली देखी थी अपने अकाउंट सब के, जो हमने क्लास 11th के सेशन 1A, 2A, 3A वगैरह में हमने बेसिक चीज़ें ये सब डिस्कस करी थी. बेसिकली द ऑब्जेक्टिव वाज टू गेट सम इंफॉर्मेशन. हम बिजनेस कर रहे हैं, सो वी वांट सम इंफॉर्मेशन, जैसे कि किससे पैसे लेने हैं, किसको पैसे देने हैं. सो दैट मीन्स बैलेंसेज इन करंट, हमारे जो पर्सनल अकाउंट्स है वो क्या है. व्हाट आर द एक्सपेंसेस वी हैव इनकर्ड, तो हमारे को नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस चाहिए कि हमने नॉमिनल अकाउंट पे कितना खर्चा किया है, तो उसके हमारे को लेजर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए. सिमिलरली वी वांट इन्फॉर्मेशन अबाउट अवर एसेट्स. सो वो एसेट्स हमारे को रियल अकाउंट्स के बैलेंसेस चाहिए कि हमारे कितने एसेट्स हैं, क्या चीज़ है हमारे पास. सो ये बेसिक पर्पज ऑफ फंडा ऑफ अकाउंट्स वाज कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि हमारे लिए वैसे कंपाइल करना मुश्किल होता है. सो वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अकाउंट्स. गो बैक टू आवर सेशंस 1A, 2A, रिवाइज कर लो एक बारी, आपके बहुत काम आएगा. बिकॉज बेसिकली ये वहीं से जर्मिनेट होंगी ये सारी चीज़ें. उसके लिए आपको वो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी. वील कम बैक टू दिस अगेन. अब ये तो बेसिक अकाउंट्स थे. सो इन्फॉर्मेशन, पर्पज ऑफ अकाउंट वाज इन्फॉर्मेशन. उस इन्फॉर्मेशन के बाद वी मूव्ड ओवर टू फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई. सो वी गॉट सम मोर इन्फॉर्मेशन. और वो क्या इन्फॉर्मेशन मिली, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, हमारे को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिली हमारे को. नाउ वी आर मूविंग अप द वैल्यू चेन. वी आर गोइंग इनटू एडवांस लेवल ऑफ एनालिसिस. वी विल बी डूइंग
ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि हम एडवांस एनालिटिक्स करेंगे. वो क्या एडवांस एनालिटिक्स है, वी विल बी स्टडिंग इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन विच वुड कैरी 20 मार्क्स. सो 3 सेक्शंस. पार्टनरशिप अकाउंट्स जिसमें बिल्कुल बेसिक अकाउंट जनरल एंट्रीज पढ़ना है हमने. कंपनी अकाउंट्स बेसिक अकाउंट्स जनरल एंट्रीज पढ़ना है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन, जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ी है. इफ यू रिकलेक्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज में हमने क्या पढ़ा था? बिल ऑफ एक्सचेंज या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हमने क्या किया था? सिर्फ जनरल एंट्रीज पढ़ी थी कि जनरल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करते हैं. सो बिल ऑफ एक्सचेंज एक पिक्यूलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस थी. उसके लिए हमने उसको स्टडी किया कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है और उसकी जनरल एंट्रीज कैसे पास करते हैं. Exactly the same thing we are going to do in partnership accounts and company accounts. So partnership के अंदर जो peculiar type of different type of transactions होगी other than normal transactions, उसको और company के केस में भी same, we'll be studying how do we record those peculiar या जो different type of transactions उसके हम journal entries कैसे पास करेंगे. This is what we are going to study. And as I have said, जो analysis of financial statements है वो एक थोड़ा सा एनालिटिकल टॉपिक है विच इज़ अ लिटिल एडवांस्ड लेवल. सो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना ली, लेकिन उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से आप इंटरप्रिटेशंस कैसे निकालोगे, इंपॉर्टेंट इसकी एनालिसिस कैसे करोगे, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इज दिस व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 12th, इसका कोई 11th के साथ कोरिलेशन है? डू यू नीड टू नो द 11th क्लास का अकाउंट्स ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द 12th क्लास अकाउंट? माई आंसर टू दिस इज येस, देयर इज अ कोरिलेशन. अगर आपने 11th में कुछ मिस आउट कर दिया है, परफॉर्म यू हैव नॉट परफॉर्म वेरी वेल इन अकाउंट्स, या यू डिड नॉट टेक योर अकाउंट सीरियसली इन क्लास 11th, ज़्यादा आपने नहीं स्टडी किया, माय रिक्वेस्ट टू यू वुड बी कि आप हमारे कुछ जो इनिशियल वीडियोस हैं, यू गो एंड वॉच दोज वीडियोस इन अकाउंट्स हब विच आर फ्री ऑफ चार्ज. एक बार आप रिविजन कर लो उसकी, बिकॉज आपको क्लास 11th के तो आप क्लास 11th तो दोबारा से नहीं करने वाले हो, आपको क्लास 11 दोबारा से नहीं करना है, बट यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अफ्रेश एंड डू वेरी वेल इन अकाउंट्स इन 12th. लेकिन उसके लिए आपका 11th का फाउंडेशन और बेसिक नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो जस्ट गो टू आवर चैनल अकाउंट्स हब, वॉच वेलकम 1, वॉच 1A, 2A, 3A, 3B, 3C. अगर आप ये 4-5 वीडियोस भी देख लो, अगर आप बाकी भी देखो तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. आपको बहुत कुछ समझ में आएगा उन वीडियोस के अंदर. शॉर्ट वीडियोस हैं 10-10 मिनट के. यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स, एंड बिलीव मी, आपके लिए क्लास 12th का अकाउंट जो है वो बहुत ईजी हो जाएंगे अगर आप उनको रिवाइज कर लोगे, एंड यू विल एंजॉय योर क्लास 12th अकाउंट्स. सो प्लीज गो एंड रन थ्रू दीज वीडियोस सो दैट you have the foundation to understand the 12th class accounts. So welcome to class 12th, and we'll take you through this journey of class 12th accounts. Subscribe our channel. We'll be periodically giving you this information, and we'll be going through this particular class 12th accounts with you in a very interesting manner. So please join us. It is free of charge, and I'm sure it will be of immense benefit to you, and you'll do extremely well. So my best wishes. Thank you. Thanks a lot. Bye for now.